Hello everyone, welcome to session. So today we'll be doing concepts of ratio 2. In this session, we're gonna discuss different type of questions that can be asked from ratio topic. So let's start it with the first question. If A is to B is 2 is to 3. So A is to B, 2 is to 3, and B is to C is 4 is to 5, and C is to D is 6 is to 7. You need to find the ratio of ABCD. So basically this is a question of mixing of ratios. So for this, we have learned two methods in the last session. So I will be showing you, like I will be using here both the methods. So let's do it with the first method. So first method condition was that from where it is ending, it should start. So this thing should be consistent. So this is fine. So we don't need to change any order. So let's find ABCD ratio. This will give you ABCD ratio. First, you will get by multiplying all these numbers. So that is 48. Second thing you will get by multiplying first of these and remaining these two numbers. So that is 72. And next you will get two of this, one of this, that is 6, 5, 30, 90. And last you will get multiplying all these numbers. So that is 35, 3, 105. So this is the first method. Using first method, you will get this ratio. Now let's see the second method. So let's see the second method that we have learned in the last session. So in the second method, we simply do this thing ABCD and write A 2 is to 3, B is 4 is to 5, and CD is 6 is to 7. Now we'll merge these ratios. Let's start from here. You can start from here, you can start from here, that doesn't matter. So let's start it from here. 6 and 5, so like LCM will be 30. So let's multiply this with 5, so this will become 30. Multiply this with 6, this will become 30. So these two things are 30, 30. So we can mix these two things. So 7 into 5 will come here. So now we removed last row and we have, this is 24, 30, 24, 30, 24, 30, 35. 24, 30 and 35. Now mix these two. So this is 24, 3, like LCM will be 24. So multiply this with 8 and we'll get the 24. So this is 24. So this is 16. So this is the answer. This is the ratio of ABCD 16, 24, 30, 35. Here you are getting 48. So this is 3 times. You need to just cancel it 3. You will get the, because both the approaches are fine. Like it doesn't matter which approach you use, you'll get the same answer. Na? Answer to same aayega. So just remove the 3 from here, you'll get the same answer. So one thing you can see here, like this is easier also, just it will take a little time to understand, little time to, you need to just practice. Whereas this is not a practice, this is just like you, once you learn the pattern, you can easily implement this thing. This thing will become faster with the, as you do the practice, this will become faster, fine. So try to use this as much as possible, but depending on the question, sometime this approach also might be useful. Okay, so you need to know both the approaches, and depending on the question, you will using the approach. Okay, let's see the next question. I think this type of question we have done in the last session also. Let's do it. So this is 3. Let's do it again. So 3A equals to 4B, 5C equals to 60. We have done the similar type of question in the last session also. So what we do, take the LCM of these numbers, that is 60. So divide all these numbers by 60. You will get the ratio of ABCD. You will get the ratio of ABCD. So this is 60 and A 20 and B will be 15, C will be 12 and D will be 10. So what is this? This is the ratio of ABCD. Now you need to find individual ABCD, whereas sum of ABCD is given. So like to explain what we can do, we can take it as K and value of A will be 20K, value of B will be 15K, value of C will be 12K, value of D will be 10K. Fine. Any problem till here? If you guys have any doubt, you can mention slide number in the comment section. Fine. You can let me know in the comment section that in this slide, this is the problem. This is the slide number.
So now what you will do, just write a plus b plus cd. So 20 plus 15 plus 12 plus 10, k तुम्हारा कॉमन है तो k will be outside equal to 1026, right? So how much this is? 30 and 57k equal to 1026. So 57, 157, 157. No, it seems to be divisible ना, तो 15 7 8 जा 56, 18 होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. 8 7 8 7 126 होता आई थिंक. 8 5 जा 90, 90 12 102, राइट? तो k की वैल्यू है तुम्हारी 18. नाउ यू हैव k's वैल्यू. You can find the individual value of, like, a will be 18 into 20, that is 360. ऐसे b आ जाएगा, ऐसे करके सारी वैल्यूज निकल आएंगी. So this is the way to solve. And one more thing, in the exam you will not do like this. In the exam you will not write k, you will not use these things. In the exam how you will do, I have explained this also in the last session. In the exam how we gonna do, like a 20, B15, C12 and D10. So what we'll do, like suppose you need to find the A. So A will be 20, जो A का ratio है, and sum of all these ratio, that is 57, multiply with the sum. So that was 18, directly you'll get the 360. So this is the way you'll be solving the question in the examination. You don't need to, this thing you don't need to equate with the K and taking all these numbers. So make habit of using this way. Okay. 1400 is divided into 4 parts such that twice the first part, thrice the. अच्छा, अब देखो क्या है, these two questions are same. These two questions are same, like similar type of question. Just this thing जो यहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, this is written here in the language form. ठीक है. So 1400 is divided into 4 parts. 4 parts में डिवाइड करना है, 1 2 3, 4 parts में डिवाइड करना है. And such that twice the first part, इसको ABCD ले लेते हैं. Twice the first part, thrice the second part, second part को B ले लेते हैं. 4 times the third part को C ले लेते हैं. And 12 times the fourth part are all equal. ये इक्वल होगा. तो देखो यहाँ पर डेटा जो दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसे दिया है, जस्ट इन द लैंग्वेज फॉर्म. व्हाट यू विल डू नाउ, अगेन क्वेश्चन बिकम सेम. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फाइंड द 4 पार्ट्स. तो मुझे सारे ABCD की वैल्यूज कमेंट सेक्शन में तुम्हें बतानी है. ठीक है, सिंपल है. So if A, B plus C, this is given and this is given, find the value of A, find the value of product of ABC. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, A is to B, A plus B, that is 3, and B plus C, that is 4, and C plus A is 5. Now A plus B plus C is given. So what you will do, just think, if you add all these, if you add, like इसको अगर K ले लो, है ना, और तब इक्वेशन तुम्हें मिलेगी a plus b equal to 3k. अगेन लाइक इन द स्टार्टिंग वी आर टेकिंग इट k, बट अगर मुझे करना हो, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डायरेक्टली डू दिस थिंग, दैट दिस विल एड अप, विल कम a plus b plus c 2 times and equals to 18, not 18, equals to this thing, कितना ये 9 12. so I know already this is come 6 and this will be 6k, और k की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज और उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, दिस इज द अप्रोच. बट देखो एक्सप्लेन करने के लिए मैं कैसे ऐसे करेंगे. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3k, b प्लस सी विल बी 4k एंड c प्लस a विल बी 5k. नाउ एड ऑल दिस, यू विल गेट 2a 2b, वही मैं जो बोल रहा था, इक्वल्स टू 12k. ये इक्वेशन आ जाएगी. सो दिस इज 6k and a plus b plus c is given 18. so what will be 6k equal to 18. a की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, this is 3, this is 3. now find the value of a into b into c. so a plus b plus c equals to 18 दिया हुआ है. ठीक है, और a plus b plus c,
इसकी 9 रख दो यहाँ पर वैल्यू, और इसकी कितनी 12 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। तो अगर a प्लस बी 9 है, a प्लस बी 9 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर b प्लस सी 12 है, b प्लस सी 12 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये 15 है तो रिमेनिंग बचा b, और तीनों का सम 18 है तो कितना हो जाएगा, 15 3 18, तीनों की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 9 इंटू 3, जो भी आ जाए, 18 9 जो जो तुम्हारा 18 9 तो वही आंसर हो जाएगा, डेट इज 162। ठीक है, 9 या 27, 27 6। Let's do this one. Aman distributed a total of 60 sweets among his sons Ram, Syam and Tarun. So Aman has 3 sons. Okay, Ram, Syam and Tarun. For every 5 sweets Ram received by Ram, like Ram को जितनी 5 sweets मिलेंगी, श्याम रिसीव्ड 4 स्वीट, लाइक अगर राम को 5 स्वीट्स मिलती हैं तो श्याम को कितनी 4 स्वीट्स मिलेंगी, सिंपल। फॉर एवरी 2 स्वीट्स रिसीव्ड बाय श्याम, अगर श्याम को 2 स्वीट्स मिलती हैं, तरुण रिसीव्ड 3 स्वीट्स, तरुण विल गेट 3 स्वीट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय तरुण। तो टोटल स्वीट्स तुम्हें दी, सिंपल। अब दोनों रेशियो को कंबाइन कर दो, कैसे कंबाइन करोगे, मल्टीप्लाई दिस विद 2, दिस इज 4:6, सो 6 यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज द रेशियो इन विच स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो तरुण विल गेट हाउ मच, 6 अपॉन तीनों का एडिशन। अगेन अब समझ रहे होगे तुम मैं कैसे कर रहा हूँ ना, 15 इंटू 60, सो 15 4 जा 6 4 24 इज the ratio of number of chocolates with A and B is 3 4। नंबर ऑफ चॉकलेट्स A और B का रेशियो जो दिया है that is 3:4। इफ A gives 4 chocolates to B, अब क्या करना है, इसको 3x 4x ले लेना है, और A 4 चॉकलेट्स B को देता है, A से 4 चॉकलेट B में आ जाती हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम बिकम्स 5:9। अब इनका रेशियो जो है वो हो जाता है 5:9। अब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, x की वैल्यू निकल आएगी, 27x - 36 इक्वल्स टू 20x + 20। So this is 7x equal to 56, x equal to 8. What it is asking? How many chocolate did A have initially? A के पास और B के पास इनिशियली इतनी चॉकलेट थी, 3x 4x है ना, यही थी, उसके बाद 4 उधर गई थी और ऐसे हुआ था। तो x की वैल्यू है 8, तो डेट इज 3x वैल्यू, डेट इज 24 चॉकलेट्स A हैव इनिशियली। अगर इसको चाहो तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, A के पास 24 थी, इसके पास 32 थी। अब देखो क्या हुआ, इससे 4 इसके पास आई तो इसके पास 36 हो जाएंगे, इसके पास 20, रेशियो देखो 5:9 बनेगा, हाँ रेशियो 5:9 हो रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन हाउ वी हैव सॉल्व्ड। देयर आर 2 क्लासेस A and B, if 10 students leave class A and join class B, then the ratio of the, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो देखते हो कैसे, इसको देखते कैसे करते हैं। देयर आर 2 क्लासेस A and B, if 10 स्टूडेंट्स, तो A में लेते हैं लाइक X लेते हैं और B में Y स्टूडेंट्स लेते हैं, ये रेशियो रिवर्स बोले ना। इफ 10 स्टूडेंट्स लीव A, अब क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स लीव A एंड ज्वाइन क्लास B, then the ratio of the number of students class A and class B would reverse। अब ये हो जाएगा y, ओके, so this is x square minus 10x and y square plus 10y। Now it is asking to find the difference in the number of students, x minus y बेसिकली ये पूछ रहा है। So if we bring this side, x square minus y square, अब थोड़ा सा तुम्हें अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, 10x plus y, 10x plus 10y, 10x plus 10y, so this is x minus y। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आंसर नहीं आएगा, बट देखो क्या होगा, 10x plus y ये कैंसिल हो जाएगा, x minus y की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि पूछ रहा है हमसे। दिस इज योर आंसर। फाइन।
डिवाइड 66 इंटू 3 पार्ट्स। अब देखो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इंटू 3 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स। तो 66 को 3 पार्ट में डिवाइड करना, लेट्स से ए बी सी, दीज आर द 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इक्वल्स द थर्ड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 2 पार्ट्स इक्वल्स द थर्ड पार्ट, इक्वल्स द थर्ड पार्ट, मतलब ये 2 पार्ट और ये इक्वल है, इन दोनों का सम और इन दोनों का इसका सम इक्वल है। अब 66 को तुम ऐसे डिवाइड कर रहे हो 2 पार्ट में, और ये 2 पार्ट इक्वल है, तो मतलब 33 यहां पर आएगा और 33 यहां पर आएगा। सो व्हाट इट मीन्स दैट ए विल गेट हाउ मच, ए के पास कितना वैल्यू जाएगा, ए विल हैव 33, सिंपल, ए विल हैव 33। अगेन see this thing carefully, divide 66 into 3 parts such that sum of the first 2 parts equal the third part and second part। first two parts first 2 parts इक्वल्स थर्ड पार्ट, ठीक है, इन दोनों के पास जितना है उतना ही इसके पास है। तो 66 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट इसके पास आ जाएगा और एक पार्ट इन लोगों के पास बचेगा। अब एंड द सेकेंड पार्ट इज 3 लेस, अब सेकेंड पार्ट इज 3 लेस, तो सेकेंड पार्ट बी इज 3 less than twice the first part, 3 less twice the first part, this is the equation। अब तुम्हें पता है a प्लस बी 13 है, a प्लस बी 33 नॉट 13, 33 है ना, दोनों का वैल्यू, यू हैव टू इक्वेशन टू अननोन, जस्ट पुट द वैल्यू b here, that is 33 minus a, 33 minus a to a minus 3 and that is 3a आ जाएगा और 36 आ जाएगा, a 12 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू अगर 12 है तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, यहाँ से हटा दो 121। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। अब जो भी पता है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो, तो ए बी सी ही असेंडिंग ऑर्डर है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन कैट 2022 2002 में, 2022 में नहीं। ये क्वेश्चन बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, देखते हैं जरा। मैंक मिर्जा, ये क्वेश्चन मैंने ढूंढ के रखा है, ये लाइक दिस इज द बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। मैंक मिर्जा लिटिल जसपाल बॉट अ मोटर बाइक $60, ठीक है। मैंक मिर्जा लिटिल जसपाल, मैंक मिर्जा, तो $60 टोटल बाइक परचेज की है। मैंक पेड 1/2 of the sum of the amounts paid by other boys। मैंक पेड 1/2 of the sum of the amounts, मतलब मैंक ने जितना इन तीनों ने मिलके पे किया है उसका आधा पे किया है। मैंक हैज पेड हाफ ऑफ द अमाउंट दैट इज पेड बाय द अदर बॉयज। तो 60 को अब डिवाइड कर दो, तो मैंक ने कितना पे किया है, मैंक ने पे किया है 1/3। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3 हो गया, इनका 2 पार्ट इसका 1 पार्ट, तो मैंक ने कितना पे किया है 1/3। ये बात समझ में, सी दिस थिंग केयरफुली। मैंक ने जितना इन लोगों ने पे किया है उसका आधा मैंक ने पे किया है, तो मैंक कितना पे करेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट विल बी 3। 2 पार्ट इनके पास है, 1 पार्ट इनके पास है, सो मैंक विल बी पेइंग हाउ मच, 1 ऑफ टोटल पार्ट दैट इज 1 + 2, जो इतनी देर से मैं पीछे रिपीट कर रहा था चीजें, 1/3, ठीक है। ऐसे ही करते ना, के वगैरह लेने की जरूरत नहीं है अब। दिस इज 1/3, तो मैंक को 1/3 ऑफ 60 कितना होता है 20, इतना अमाउंट मिल जाएगा। मिर्जा पेड 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अमाउंट्स पेड बाय अदर। अब देखो मिर्जा जो है, अब देखो मिर्जा क्या कर रहा है, मिर्जा पेड 1/3, मिर्जा ने 1 पे किया और इन सब ने मिलकर 3 पे किया, इन सब ने मिलकर 3 पे किया, उसका मिर्जा ने 1 पार्ट पे किया। तो मिर्जा ने बेसिकली कितना पे किया, टोटल कितना हो गया 1 + 3, और मिर्जा ने 1 पार्ट पे किया, दैट इज 1/4 ऑफ दिस, दैट इज 50। ये स्टेटमेंट ध्यान से समझना, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, अदरवाइज अगर तुम करोगे XY लेके
इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड लिटिल पेड 1/4, अब देखो लिटिल पेड, लिटिल पेड 1/4, तो लिटिल ने 1 पार्ट पे किया, इन सब ने मिलकर 4 पार्ट पे किया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 + 4, टोटल 5 पार्ट में, और 1 पार्ट पे किया लिटिल ने, और 60 का, तो 5 60 दैट इज 12, तो लिटिल ने कितना पे किया, 12, लिटिल हैज पेड $12, लिटिल हैज पेड $12। हाउ मच डिड जसपाल पे, तो सबका सम 60 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी क्वेश्चन। नाउ दिस इज डन, 747 दैट इज 13 अमाउंट, $13 इज पेड बाय द जसपाल, ठीक है। Again I am repeating, these are the different type of questions, so make sure like you understand each and every question properly, and if you want you can like make these in your notes also, you can note down this in your notes also। अब ये देखो, एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन की वजह से मैंने इसको लिया है। ₹117 was supposed to be divided among Rohan, Sohan and Mohan in the ratio, by mistake it was divided, तो बेसिकली इस रेशियो में डिवाइड होना था, बट गलती की वजह से ये इस रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमें लाइक चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, लास्ट आई थिंक हमने किया था ऐसा कुछ क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज लाइक दिस। अब जैसे हमें सपोज यहाँ पर रोहन, सोहन और मोहन है, ये ऑर्डर है, रोहन सोहन मोहन। अब सपोज हमें रोहन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 1/2, 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे आ जाएगा, जो टोटल अमाउंट होगा, है ना, 117 है। बट this way calculation will become difficult, so what we'll do, just पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने से पहले सिंप्लीफाई दिस थिंग, सिंप्लीफाई, जो इसका एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, रेशियो को अगर सब एक ही चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस बिकम्स 6, दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 3, तो यूज दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यूज दिस थिंग। तो डिवाइड होना था 2 3 4 में, बट हो गया है 6 4 3 में, ओके। राम सोहन मोहन, डिवाइड इस रेशियो में होना था, हो गया है इस रेशियो, अगर इस रेशियो में होता, ये वाई है, फाइंड द लॉस गेन रोहन, तो रोहन में बेसिकली कितना फर्क आया, रोहन को पहले कितना अमाउंट मिलता और अब कितना मिल रहा है वो निकालना है। तो यहां पर रोहन को कितना अमाउंट मिलता, 2x अपॉन पूरे का कितना है 9, और 13 9 जो, तो बेसिकली यहाँ पर 26 मिलता है रोहन को, रोहन विल गेट 26 रुपीज। यहां पर कितना मिलेगा उसे, 6/13, यहां पर उसे 54 मिलेगा, है ना। तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, आई थिंक इट 28 28 इज द आंसर। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी वुड बी दिस थिंग, the ratio of expenditure of A and B is this, which of the following cannot be the ratio of savings of A and B। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये लाइक इस पूरे स्लाइड का, इस पूरे डिस्कशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई हैव टोल्ड यू, जो कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बताए थे ना, लाइक ये कंडीशन होगी, अगर A बाई बी में अगर तुम ऐड करोगे, लाइक इफ यू आर एडिंग सपोज K/L, आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन बिकम डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए बी, तो मंथली इनकम ऑफ ए बी इज गिवन दिस थिंग, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, अब इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज, तो ये कर लो इनकम कर लो, और ये कर लो एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो 4:5 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेविंग, तो सेविंग क्या होंगी, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सेविंग जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सपोज इसकी इनकम 3x है और इसकी इनकम 4x है, और इसकी सेविंग 4y और ये y, तो बेसिकली लाइक जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x - 4y
is to 4x minus 5y. You need to find this. इसकी रेंज निकालनी, यू कैन से, है ना, इसकी एक साइड की रेंज निकालनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द सेविंग. इनमें से कौन सा सेविंग का रेशियो नहीं हो सकता. सो दिस इज सेविंग, दिस इज सेविंग, ये सेविंग का रेशियो है. नाउ हाउ यूल फाइंड कि ये रेशियो में से कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो दैट कॉन्सेप्ट विल कम हैंडी हियर, है ना. वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर काम आएगा. देखो कैसे. अच्छा, वहां पर मैंने तुम्हें माइनस वाली चीज नहीं बताई होगी. तो देखो क्या होता है, अगेन ये फिर से नोट डाउन कर चाहो तो वहीं पर नोट डाउन कर लेना. अगर इफ यू आर कंपेयरिंग टू रेशियोज ए टू बी है और उसमें तुम लाइक इसको कन्वर्ट करते हो ए प्लस के और बी प्लस एल में, है ना. सो इफ ए बी इज ग्रेटर देन के बाई एल, देन रिजल्ट विल बी ए बाई बी ग्रेटर देन ए के और बी एल. ये बताया था मैंने. और सेकेंड केस था इफ ए बी इज लेस देन के एल, देन रिजल्ट विल बी दिस वन. ये मैंने लिखाया था. ठीक है. अब थोड़ा सा चेंज माइनस के लिए. देखो क्या है यहां पर, क्योंकि माइनस हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है, तो जस्ट माइनस कर देते हैं. ठीक है. तो माइनस और ये माइनस, तो माइनस में क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा. माइनस, ये नोट डाउन कर लो, जहां पर तुमने नोट डाउन किया उसके नीचे नोट डाउन कर लो. वहां पर क्या था कि जो साइन रहता था वहीं रहता था, बट अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन देखो रिवर्स हो जाएगा. जस्ट नोट डाउन दिस थिंग केयरफुली. जो साइन है ये रिवर्स हो जा रहा है ना. पहले ये साइन था और फाइनल रिजल्ट में वो साइन रिवर्स हो जाएगा. तो अब ये केस देखो, नोट डाउन कर लो ये चीज और ये वाले केस पे आते हैं. अब उसकी इनकम 3-4 है, ये रेशियो में दी हुई है. 3-4 इनकम इस रेशियो में दी है. एंड जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर इज दिस, एक्सपेंडिचर इज दिस. अब इसमें विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर. ये 80% और ये 75% है. 75% 3/4 और ये 80% है अगर तुम कन्वर्जन से इसे देखो. तो दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. 3x माइनस 4y 5 कितना 4x माइनस, जो रिजल्ट की हम बात कर रहे थे, ये सेविंग थी ना तुम्हारी, सेविंग यही थी. 3x माइनस 4y अपॉन 4x माइनस 5y, दिस वॉज द सेविंग पार्ट. ये सेविंग पार्ट था. तो अब ये जो सेविंग है ना, ये सेविंग 3/4 से कम होगी. 3/4 इज हाउ मच. अगर लाइक ये जस्ट मैं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इनमें कंपेयर कर लो. जो ये वैल्यू होगी, जो सेविंग होगी, डैट विल बी लेस देन दिस वैल्यू, ऑलवेज लेस देन 3/4. अब तुम्हें इसमें रेशियोज देखने हैं. जो रेशियो 3/4 से बड़ा होगा डैट कैन नॉट बी सेविंग. सिंपल, ये समझ में आया. आई होप इट इज क्लियर. ये नोट डाउन कर लो. फिर सिंपल सा प्रोसेस है. तुम्हें रेंज मिल गई कि जो सेविंग्स है वो इससे लेस होनी चाहिए. सेविंग शुड बी लेस देन दिस रेशियो. तो इसमें कौन सा रेशियो, तो मैं कैसे कन्वर्जन करता हूँ तुम्हें बताया था, मैं कैसे कंपेयर करता हूँ. तो लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग. 3/4 से लेस होनी चाहिए. तो वही जो सेविंग का रेशियो है डैट इज 3x माइनस 4y 4x माइनस 5y. ये है. अब कैसे कंपेयर करोगे, तो ये देखो 75% है ना. 75% 3/4 रेशियो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट को तो 75% है ना ये. तो 75% ये है. और ये 2/3 है. 2/3 कितना है, 66.66%. फाइन है, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. 4:5 क्या है, 4:5 20 80% है. 80% 75 से ज़्यादा है. दिस कैन नॉट बी द रेशियो. दिस इज द आंसर. और भी चेक कर लेते हैं. 8/11, तो 11 होता है तुम्हारा 9.099. वो टेबल तुम्हें याद रखनी है जो मैंने फर्स्ट सेशन में अर्थमेटिक के बताई थी परसेंटेज के. वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसी से मैं कर रहा हूँ. 72 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो लेस देन 75, अगेन दिस वर्क्स. 5/7 ये कितना आएगा, ये होता है 14.2.
14 5 70, तो अगेन ये 70 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 75 से लेस है। तो दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आया, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी रिसेंट में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। 5 vessels have equal capacities, each vessel contains some milk। तो लाइक 5 वेजल हैं तुम्हारे पास और सबकी सेम कैपेसिटी है। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन दीज वेजल, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटीज दिया है तुम्हें। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3/5। तो क्या करते हैं, लाइक वेजल 1 में 3x है सपोज, इसमें 4x है, 5x है और 6x है और 7x है। टोटल ऐड कर लो। आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दैट इज 10 10 25x। टोटल 25x लीटर मिल्क है, लीटर बोला है कुछ भी बोलो। द टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3/5 ऑफ द कंबाइंड कैपेसिटी। अब देखो पूरे जितने तुम्हारे ये हैं, इनकी सबकी कैपेसिटी सेम है ना, कैपेसिटी सेम है और ये 3/5 है। दिस इज द 3/5, दिस इज द 3/5 ऑफ द टोटल कैपेसिटी। सो लेट्स से टोटल कैपेसिटी x है, total capacity x का that is 25x। so if you cancel this thing, so we are getting 5 3/4, sorry this is 3/5, the total capacity 3/5 of the combined vessel। okay, x equal to 1 to 5x upon 3। अब देखो एक और काम कर सकते हो इसमें, जब ऐसा आ जाए, अगेन दिस इज जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर, नथिंग एल्स। व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ, मैं क्या करूंगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेशियो है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9x हो गया एंड 12x हो गया, 15x हो गया, 18x हो गया और 21x हो गया। अब अगर तुमने यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो जो तुम्हारे टोटल वेजल की कैपेसिटी है वो इतनी आ गई है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ योर टोटल जितने 5 है ना, सबकी कैपेसिटी मिलाकर। तो 5 है, एक की कितनी होगी, इसको 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 25x। तो एक की कैपेसिटी 25x है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस डेटा की जरूरत नहीं। एक की कैपेसिटी 25x है, तो ये 25x। अब इसमें हमें परसेंटेज देखना होता है कि कौन कितने परसेंट है। पूछ रहा है देखो हाउ मेनी वेजल्स कंटेन एटलीस्ट हाफ, तो 25 का हाफ होता है 12.5। 12.5 किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, 12.5 से ज़्यादा। तो हाउ मेनी कितना, 3 आंसर हो जाएगा, आंसर इज 3। ये बात समझ में आई। इसमें एक कैलकुलेशन की चीज़ काम की है, ये जो मैंने बताया आसान करने के लिए अपने कैलकुलेशन को 3 से सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन एक और क्वेश्चन मैंने लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अ स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स इन द रेशियो, दिस रेशियो, तो अगेन इसको ऐसे लिखेंगे 5x 4x 6x 8x 7x, ये इसके मार्क्स हो जाएंगे स्टूडेंट के इन 5 सब्जेक्ट हैविंग इक्वल मैक्सिमम मार्क्स। इक्वल मार्क्स सेम है, ठीक है, तो सबको ऐड कर लो, 12 12 24 24 6 30x, ठीक है, 12 12 24 24 6 30x is the total marks that student had got if he scored 50% of the maximum marks in all subjects 5 taken together। तो इसका जो मार्क्स है दिस इज 50% ऑफ टोटल लेट्स से x एंड दैट इज 30, सो 6 दैट इज 60x। तो जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका सम है 60x। तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 12x। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट इज 12x, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट इज 12x। अब क्या पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही स्कोर मोर देन 55। तो अगर 12x एक सब्जेक्ट का है तो 55% कितना होगा, 55 6.6 आई थिंक, 12 5 60 66, दैट इज 6.6 मोर देन। तो 6.6 से ज़्यादा किसमें किसमें मार्क्स है, इसमें मार्क्स है और इसमें मार्क्स है, तो 2 इज द आंसर, ठीक है। तो इस लाइक रिसेंट में इस टाइप का आई थिंक क्वेश्चन आया है, सो मेक श्योर ये तुम अच्छे से तुम समझ पा रहे हो ना। सिंपल से स्टेप है, सबको ऐड कर लेना है, फिर टोटल कैपेसिटी निकल आएगी, फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी निकल आएगी और फिर ऐसे चेक कर लेना। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, सो नाउ लेट्स डू द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये एज वाले क्वेश्चन है तुम्हारे, लाइक जिसमें एज दी होती है कि लाइक आज रेशियो ये है और 10 ईयर बाद इतना होगा और उससे पहले इतना था। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद। समीर एंड आनंद, अब देखो इसको कैसे करते हैं, जस्ट फॉलो
द वे दैट आई एम डूइंग, है ना। अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैं कर रहा हूँ ट्राई टू फॉलो दैट थिंग, अगर तुम्हें समझ में आता है। अदरवाइज जो तुम्हें लाइक हाउ यू आर कंफर्टेबल वैसे ही करना है, ठीक है। मैं देखो ऐसे करता हूँ, आई ऑलवेज राइट नेम हेयर, ये फॉर्मेट में फॉलो करता हूँ इन क्वेश्चंस के लिए। आई विल राइट नेम हेयर और आई विल मार्क दिस थिंग दैट दिस इज अ प्रेजेंट लाइन, ये प्रेजेंट लाइन है। तो रेशियो ऑफ समीर एंड अनंत ये है, तो समीर की यहाँ पर 5x हो जाएगी और इसकी 5x, ये प्रेजेंटेज का रेशियो। 3 ईयर हेंस मीन्स 3 ईयर इन फ्यूचर, सो 3 ईयर फ्यूचर मैं इधर को आऊंगा, पास्ट में इधर को जाऊंगा, तो 3 ईयर बाद इसकी कितनी एज हो जाएगी 5x+3, एंड और इसकी कितनी हो जाएगी 4x+3, एंड दिस रेशियो इज 11:9, दिस रेशियो इज 11:9। तो सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज 45x27, 44x+33, and that is x equal to 27 माइनस 3, डेट इज 6। x की वैल्यू 6 आ गई। आनंद की प्रेजेंट एज बतानी है, डेट इज 4x, डेट इज 4 इंटू 6 24, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट दैट आई फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years back the ratio of the ages of husband and his wife was, so again husband and wife present। so अब क्या करते हैं, ये दिया हुआ 6 year बैक, तो 6 year बैक ये रेशियो है 6 year बैक। तो प्रेजेंट में आने के लिए कितना 6 ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंट में आने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द प्रेजेंट एज, देयर एज विल बी इन द रेशियो 6 year हेंस, है ना। 6 year हेंस, 6 year हेंस 6, 12 ऐड हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 10:9। सॉल्व कर लूँ, 54x108 50x+120, 4x and 12, x equal to 3। रेशियो परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज 6x एंड 5x, या फिर यहाँ पर पुट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल। व्हाट आई फाइंड कि ऐसे इजियर रहेगा, इसको 18 निकाल लिया और 15 निकाल लिया और 6, दैट इज 24 एंड दैट इज 31। दिस इज द रेशियो। यहाँ पर भी कर सकते थे, दैट इज लाइक सही ना, 15 6 21, सॉरी 21, दैट इज 7 3 और 8 3, तो 8:7 इज द आंसर। यहाँ पर आ जाएगा 8:7। अच्छा एक चीज देखो, इसमें तुम्हें याद रखना है, इन एज के क्वेश्चंस में क्या होता है, जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, ये रेशियो हमें, ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना। लाइक अगर तुम किसी से लाइक सपोज यू आर लाइक 20 year यंगर देन योर अंकल, यू आर 20 year यंगर देन योर अंकल, तो ये 20 year का हमेशा गैप रहेगा ना। अगर तुम अपने लाइक इफ यू आर फ्रॉम इल्डर ब्रदर, इफ यू आर 2 year यंगर, 2 year यंगर देन योर इल्डर ब्रदर, तो ये हमेशा गैप 2 साल का ही रहता है ना, कभी तो ऐसा तो नहीं हो जाता कि गैप 4 साल का हो गया। तो दैट इज द सेम थिंग, एज का गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। एंड दिस थिंग, ये चीज जो है, ये डिफरेंस है ना, अगर सेम लाइन में लिख रहे हो तो ये जो डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस 6 है तो इसका भी डिफरेंस 6 हो, ये दो चीजें तुम्हें बैलेंस रखनी होंगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन इज 4:1। 12 years from now the ratio of age, तो सिंपल सेम थिंग, मदर रेशियो प्रेजेंट 4:1, 12 year from now 4x+12, x+12, this will be 2:1, so this is 4x+12 equals to 2x+24, 2x equal to 12, x equal to 6, present ages of mother and son. So this is 24 and 6, 24 and 6 is okay. The ratio of present age of mother to that of her daughter, mother daughter, प्रेजेंट एज का दिया हुआ है 10 year ago, 10 year ago, 10 year ago, and this ratio is 7:2। ये 9x minus 2, 4x minus 10, 4x minus 10, so 18x minus 20 equals to 28x minus 70, and this is 10x
and this is 50, x equal to 5. What are the percentages? 45 and 20. This is the answer. Okay, so these were like different type of questions that I have covered. Now two things are left. One are the type of questions जहाँ पर income और expenditure का ratio दिया होता है, and second is partnership questions. पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है, एंड वी हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू कि लाइक राम श्याम दोनों का इनकम का रेशियो ये है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा, एक हमने क्वेश्चन किया है, बट और भी दूसरे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट इन द रेशियो दैट विल बी डू इन द नेक्स्ट सेशन. So I hope you guys like make sure I will upload the PDF for this also, like इसमें क्योंकि सारे क्वेश्चन है, इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो. एंड मेक श्योर ऐसे ही ट्राई करो कि क्वेश्चंस को अप्रोच करो, एंड note down these concepts, note down these methods in your notebook also, because these are the best way to solve these questions. एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप ऐसे है, एंड यू कैन डिस्कस द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम तक्षशिला एंड टाइम की PDF, दोनों से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. So that's it for today. Let's see you in the next session.